Hello, my name is Mariam Arif and I'm the podcast host. And today we are talking to Areeb Khan. He is a tech founder and an enthusiast today. And in this podcast, we will be diving and meeting people who are changing Pakistan for the better. So, Areeb, hello and assalamu alaikum. Wa assalam. Thank you so much for having me. Thank you so much for being here. So, Areeb, your journey is quite inspiring. As the CEO of Areeb Innovations, as well as doing a lot of other things in this podcast, can you tell us a little about your background, especially your early education and early stages? So, we'll start from where I was born and raised. So, my father is basically a mechanical engineer. He works in a private company. So we basically lived our almost whole childhood in Miawali, in South Punjab. I was born in Chasada, which is my hometown. We shifted to Miawali for my father's job. More than half of my life we spent there in Miawali. After that, my father was transferred to Haripur. We came to Haripur. In 2019, Areeb Innovation was started. It has been around 6 years. The 7th year is started Yeah. around. So Yeah. that's the basic. So I met you back in 2021 when we were at the National Youth Awards. So that was the first time I met you, Yeah. and I was quite impressed by the work you're doing as the CEO of Areeb Innovations. Can you tell a little bit more about your company? So Areeb Innovations, the idea was simple, just to an IT company since childhood. As I said, at the age of 4, I started using computers. At the age of 5, I learned how to install Windows XP. At 11, I cracked Windows XP. तो सेम वक्त से चलता गया और बस माइंड में यही था कि बस कुछ करना है, बस इसी फील्ड में कुछ करना है, यही फील्ड मेरे लिए है. और आपको पता होगा उस टाइम पे हमेशा उस बच्चे को बड़ा अजीब देखा जाता था जो कि कंप्यूटर साइंस की तरफ जाता था. लगता था कि यही रह गया तुम्हारे या पास, बस मेडिकल या फिर वो यही रह डॉक्टर? गया तुम्हारे पास. जबकि आज देखिए तो एक ही फील्ड है हमारे पास. डॉक्टर आर लिटरली सिटिंग एट होम्स, nothing to do, Yeah. unable to do jobs. So Definitely. I think my parents told me that I was a born businessman, born an entrepreneur. So time travels at the age of around 15, around 14, 15. I started doing multiple things. I started doing things like selling consoles, selling gaming equipments, selling CDs, buying it from places like Peshawar and nearby, pirated discs, and selling it on Facebook groups. At that time, इस चीज़ का मतलब बहुत ज़्यादा नाम था और बड़ा इसका बूम भी था और यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा थे जो कि इस चीज़ के अंदर बहुत इन थे. आजकल तो गेमिंग ज़रा डाउन हो गई, उस टाइम पे तो इन लिटरली ऑन बूम. Okay, so that's really interesting. So I wanted to ask you, आपने कहा your parents, your father bought you a PC, right? Then basically, it seems like your parents also said that you were a really good businessman. So I wanted to ask you, was the parents support from the start? वो आपको starting से ऐसे nurture करते थे कि our son is going to be someone someday? और वो कितना important है आज के लोगों के लिए? मुझे लगता है कि आपकी जर्नी के अंदर इससे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हो ही नहीं सकती. जब आपके पास अपने घर से सपोर्ट ना हो, यू लिटरली कैन डू नथिंग. चाहे वो दुआएं हो या चाहे उनकी सपोर्ट हो, दोनों की हर यंगस्टर को ज़रूरत होती है. एट दैट टाइम बहुत मुश्किल था समझाना, बहुत मुश्किल था कि ये भी एक फील्ड है. पहले तो जिस आदमी को समझ आती थी कि भाई ये
ऑनलाइन पैसा कमाना आता है, ऑनलाइन ये काम करते हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं। मतलब आप बात करें 2014-15 की, व्हेन आईटी में थोड़ा सा ब्लॉगिंग और इन चीज़ों बड़ा बूम बूम पे गया था। बहुत कोशिश की हमने एडसेंस इन चीज़ों का थ्रू मल्टीपल इलीगल वेज, मेड लिटिल बिट ऑफ मनी फ्रॉम दैट, बट ये था कि इसको एक करियर बनाना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। But you came up. बट आई थिंक टाइम गुजरता गया और बस उनको भी ऐसा समझ आ गई थी कि मेरे लिए यही फील्ड है और मैं शायद हूँ इसी काम के लिए। यानी मैं ऐसा बच्चा था जिसके सामने बुक्स रखो तो नींद आ जाती थी। Really? अगर मैं हाँ। बुक्स रख कर नींद आ जाएगी नींद आ तो जाती थी। that's actually good. बुक्स मैं नहीं पढ़ सकता। So I बिजनेस की बुक्स, अगर हाँ, बिजनेस बिजनेस की बुक्स हाँ तो फिर पढ़ोगे। I have written more than 6 research papers currently, and the current research paper I just completed is with my fellow members from MIT. It's around 12,000 words. It's about UFO, aliens, beyond Earth, This future is so technology. cool. Yeah. I have a huge interest in aliens, UFOs. I want to meet them as soon as possible. That's actually such a cool interest, aliens and UFOs. I feel like इतना कोई कर नहीं रहा, especially उस पे research भी नहीं हो रही, and you're doing it as a businessman, a business side of things as well, और MIT लोगों के साथ. That is so cool. So basically you're writing papers, you're doing all of that. So do you get time? How do you manage it? I mean, you're young, so how time management must be a thing. अगर मैं थोड़ा सा इसको पीछे लेकर जाऊँ आज से 7-8 years बिफोर, तो थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि दैट वाज लिटरली माई स्ट्रगलिंग डेज। टुडे 80% ऑफ माई बिजनेसेस आर ऑटोमेटेड। Arib Innovations is completely automated, completely. Can you guess in last 2 months how many days I visited my office? 2 months. 4 days. 4 days. Oh wow. I manage everything from my house. What about the employees? Everything. Do you have employees? या फिर वो automated है? No, let me tell you. In Pakistan, we have in-house team of around 147 people. Remote, UK, US, Germany, Arib Innovations is currently registered in these 3 countries, and we have around 50 remote employees as well. So it's around team of almost 200 worldwide. 200 worldwide. Yep. And your age is like most likely 21. 21. So 200 employees at 21. That's actually really a good accomplishment, Arib. And what Arib Innovation is doing, can you explain more of that, your First company? of all, let me come to the age. Yeah. Age is just a number. True. True. कुछ लोग देखेंगे और वो यही बोलेंगे कि ये किसका नहीं है। चलो लेट्स से आई एम 45. ठीक है. Okay. I challenge you to do the same stuff which I am doing right now. True. See, I have literally give my last 8 years to this field. Like fully. No games, Nothing. nothing. But sports भी नहीं, Nothing, gaming nothing, भी नहीं. So no, nothing, 100% on nothing, one thing. nothing. Okay. I started sports 2 years back. ठीक है. I never played cricket. I never played football. Nothing. Yeah. जो आपको पास जब आ जाता है, जब अल्लाह आपको नवाज देता है, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि उसको लगाने का, उसको एंजॉय करने का ये टाइम होता है। आपके 20s होते हैं, 22. 20s होते हैं। 50s में जाके आपके शौक इतने कम हो जाते हैं कि आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने 10 से शुरू करें और कोशिश करें। मैं ये नहीं कहता हर बंदा ही बिजनेसमैन बने, हर बंदा एंटरप्रेन्योर बने, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन हर बंदा कोशिश ज़रूर करे, हर बंदा कोशिश करे। अल्लाह ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल डाली होती है। उस स्किल को उभारना बहुत मुश्किल काम होता है। उसको एक बार आपने सामने ले आए, आपने एक बार अपने आप को एक्सप्लोर कर लिया, देन यू आर द बेस्ट। सो अब मतलब मुझे
सिंस चाइल्डहुड, जैसा मैंने बताया, ना मुझे बुक्स पसंद थी, ना मुझे पढ़ना, ना मुझे कोई और चीज़ है। यहाँ तक कि मैं भी लोगों को कहता हूँ कि हमारे सो बेसिकली आई स्टडीड एट मियाँ वाली, आई स्टडीड एट PF मियाँ वाली, ब्रोज़ाक फ़िज़ाइया कॉलेज. सही. After that, my father was shifted to Haripur, so we came there, and I almost studied 2 years. COVID came, alhamdulillah, and my business got boomed. Obviously. Yep. So after that, with studying my metric in 2019, I shifted to Islamabad alone. Coming here, making my partners here. So basically, I live with my partners here. So I travel back to forth to my hometown, to my Wow. parent place, and to Islamabad. तो काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ता है. No, I travel almost 70 to 80,000 kilometers every year. It's my passion. सही. ट्रैवलिंग इज़ योर पैशन. Is my passion. ठीक है. तो अकेले ऑब्वियसली इन इस्लामाबाद इज इट डिफिकल्ट? जब आप स्टार्टिंग में आए थे, डिड यू फेस सम स्ट्रगल्स? Very difficult. It was very difficult. I came to Islamabad. We made our first office at PWD. PWD. Yes, it was 2 floors with 4 employees. Today I own I not own I basically Arabian Nations is a 3-floor building with 147 in-house team. We have developers, we have marketers, we have advertisers, Facebook ads, Google ads, management, startup management, business management, brand management, branding, everything इन हाउस. in-house. ठीक है. सो अरीब इनोवेशन इज बेसिकली कौन सा इज द करंट प्रोजेक्ट you're looking at, you're interested in? Good question. So basically, Arib Innovations is a MarTech company, marketing technology. We are marketing technology company. Basically, let me tell you first of all what we do. हम क्या करते हैं? हम basically हमारे जो targeted countries हैं, that is UK, US and Germany, these 3 countries. What we do is we find seed funded startups from these countries. Those startups which are funded minimum $300,000 सही. goes up to $6-7 million in last 3 years. What we do is we sign a contract with them from minimum 4 months till 3-4 years. And what we do is we do branding, marketing, advertisement, social media management, each and everything. We like manage the whole startup till they become a brand. तो हाउ डू यू फाइंड दो स्टार्टअप्स? लाइक आप कहीं कांटेक्ट करते? बिकॉज यूएस में इट्स लाइक थोड़ा होता होगा सम सॉर्ट ऑफ रिजर्वेशंस के पाकिस्तानी पीपल आर डूइंग इट. Let me tell you. So how we find the startups is we are basically partnered with a few investment companies, startup investment companies. We are the only Pakistani which are partnered with Y Combinator, which is currently the world's biggest startup investor program. या. It has invested in more than 10,000 startups worldwide. So what we do is basically अब Y Combinator के साल में 2-3 बैचेस होते हैं. एक बैच में कम से कम 100 to 120 स्टार्टअप्स होते हैं. जब कोई भी स्टार्टअप को बैकिंग मिल जाती है Y Combinator से, so we provide them our services through Y Combinator. ठीक है. We provide commission to Y Combinator. सही. I got it. Got it. So you must have a really good portfolio by Yeah. now. Other than this, we are totally on Google Ads. UK, US, Germany. Yeah. Like literally $100,000 every month, almost On the ads. on the ads. ठीक है. That is interesting. So उनकी जो reservations होते हैं, how do you deal with it? Have you ever faced any reservation वगैरह कि this is a Pakistani branding company or etc. Or do you don't market it as Pakistani or No, something? in the start, it happened a lot of time in the start, but as time flies, so what we do is basically we partnered with US based tech companies. ठीक हो गया. इस टाइम पे मेरे कुछ स्टार्टअप्स में इन्वेस्टर्स हैं which are from US with US nationality, from UK,
with UK nationality, सही. from Germany with German nationality. So basically, today I have an ISO 9001 certified company. ठीक है. It is the only MarTech company in Pakistan with ISO 9001. ठीक है. एक तो हमारे पास उसकी बैकअप आ जाता है, और दूसरा हमने क्या किया शुरू से ही, हमने अपने स्टार्टअप को मार्केट ही इस तरीके से किया कि इसको हमने, यानी आप हमारी वेबसाइट भी खोलेंगे तो वहाँ पे आपके सामने हेडक्वार्टर्ड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है, Okay. मेड विद लव इन पाकिस्तान. ठीक है. सो प्राउड पाकिस्तानी. हमने कभी इस चीज़ को नहीं छुपाया कि हम पाकिस्तानी हैं. हाँ, हुआ मेरे साथ काफ़ी बार हुआ कि स्टार्टअप्स आए और स्टार्टअप इसी वजह से गए कि हमें पाकिस्तान से ये मसले पहले पेश हुए हैं तो हम नहीं आएंगे. हुआ ऐसा. बट नथिंग हैपेंड इन लास्ट 3-4 years. 3 days back, we are the world top 3 project management companies. Wow. We are on the 3rd number. Currently in New York, we are on number 2 in ad spend on Meta. We are in number 1 in Berlin on Google ad spend. ठीक So multiple titles. Multiple titles, and obviously multiple companies are working with you with Areeb Innovations. इसके अलावा what are there any other services which Areeb Innovations give? No. Basically, हमने क्या किया है, IT कंपनीज तो बहुत हैं, मार्केटिंग कंपनीज तो बहुत ज़्यादा हैं. एंटरप्रेन्योर का एक जहन ऐसा होता है कि उसने हमेशा, एंटरप्रेन्योर होता है उस बंदे को कहते हैं बेसिकली जो किसी भी मसले का कोई हल निकाले और उसको बाद में एक बिजनेस बनाए, वे ऑफ अर्निंग बनाए उसको. तो मैंने कभी भी जैसे कि मैंने रियल एस्टेट किया, मैंने वो रियल एस्टेट नहीं किया जो कि यहाँ से प्लॉट पकड़ा और वहाँ बेच दिया. I didn't did that stuff. So basically मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं नीश बेस्ड बिजनेस पे काम करता हूँ. ठीक हो गया, मैं छोटी फील्ड्स पे करता हूँ. अब मुझे ऐसा लगा एक बार बैक इन 2019 कि स्टार्टअप्स को पूरी दुनिया में ये चीज़ मसला पेश हो रहा है. They can't find good marketing companies. So at that time, around in the whole world, there were 3-4 companies which are just providing services to just startups. So we were like the early top 5s. So is it like very burdenized when you started? You were very young. So was it like a burden? And how did you, if you had any stress, how did you manage it? या फिर क्या, how did you actually manage yourself, I would say? In the start, ये मुझे नहीं लगता कि मेरे से ज़्यादा ही किसी और को हुआ होगा. Obviously, I was 16-17 when I started Areeb Innovations. But thank God, thanks to Allah Almighty, I literally got the best peoples, one of the best peoples. और इसके अलावा माँ बाप की दुआएं. तो बेसिकली क्या होता था कि जब मैं अपना मैट्रिक कर रहा था 9th-10th ग्रेड, तो सबसे ज़्यादा मुश्किलात उस टाइम पे आई, कोविड टाइम में मुझे आई. उसमें क्या होता था कि कोविड में आपको पता है स्कूल तो सारा साल बंद, तो और उससे पहले भी मतलब ये था कि आई हैड टू मिस माई क्लासेस लाइक एवरी डे. लाइक आई गोज टू स्कूल लाइक आफ्टर 1 month, आफ्टर 1.5 month, आफ्टर 2 months. ठीक है. तो पूरा स्कूल मेरी तरफ होता था कि यार ये क्या कर क्या रहा है ये, like why you back? ये पढ़ता क्यों नहीं है, मसला ही है. मतलब दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, लेकिन थैंक गॉड कोविड आया, आई गॉट पास्ड. ठीक है. ठीक हो गया. You got passed. Yes. So Areeb Innovations was in full boom when I was in 9th grade. I got my biggest clients when I was in COVID. सही. So after that, it all started. Did you think कि एक time you were struggling in the start और फिर अचानक से आपका you boom आया, इस तरह हुआ था? Like was it like यूं किया था आपका चार्ट या फिर it was like यूं गया था चार्ट? नहीं, एंटरप्रेन्योर का चार्ट ऊपर नीचे होता रहता है. एंटरप्रेन्योर का चार्ट एकदम ऊपर होता ही नहीं है. जिंदगी में हमेशा एक दिन ऊपर होता है, एक दिन नीचे होता है. वो कुछ समझ ही नहीं आती.
हमारी ज़िंदगी एज एन एंटरप्रेन्योर, हमारा हर दिन ही एक रिस्क होता है. Yeah. Like literally, if I have $1 million in my account, I saw a startup a day after tomorrow. Amazing startup from Berlin. Let's buy it. Okay. ठीक है, और मुझे पता चल रहा है कि भाई 2 सालों में इसने मतलब ये बूम कर जाएगा, मैं दुनिया हिला दूंगा. तो आई एम रेडी टू इन्वेस्ट ऑल ऑफ माई मनी इन इट. Obviously. ठीक है. तो हम एंटरप्रेन्योर्स चलते ही ऐसे हैं, क्योंकि देखिए अभी ये कि हमारे ऊपर इतना कोई वो नहीं है ना हमारे ऊपर ये कि चले कुछ हो जाएगा. आई हैव मेड इनफ जिससे मैं सब कुछ चला लूँगा पीछे. सो जो मेरे पास होता है, आई जस्ट प्ले विद इट. Okay. So obviously, getting it at this stage, you have worked very hard. What do you think about people, especially students, जो अभी university में भी हैं, who aren't working this hard? ठीक है. I know some of people from my university who aren't working this much hard. So what do you want to say कि how would they motivate themselves so they can contribute better to the Pakistani society? So the main thing is to focus on skills. Just focus on skills. आप डिग्री कर रही हैं, आप कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, जहाँ पर भी है, आगे फ्यूचर इज़ ओनली अबाउट स्किल्स. मेरे पास कल कोई जॉब लेने आएगा, वो कोई अपनी डिग्री लेकर नहीं आएगा. Okay. मेरी किसी भी अलीब ग्रुप में वी डोंट रिक्वायर डिग्री ऑन एनी पोस्ट, फ्रॉम अ क्लीनर टिल अ डेवलपर. इफ यू हैव द स्किल, कम एट मी. Do you think the next आगे generation जो आ रही है, that is just more going to be based on skills? यस, मैं ये नहीं कह रहा कि डिग्री काम की नहीं है या ना करें, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा. डिग्री हमेशा अब ऐसा बंदा हो जिसने एक आईटी में आना है, ही नोज नथिंग, तो डिग्री आप बेसिक सीख लेंगे सारा. जब आप बेसिक सीख लेंगे, आपको वहाँ से नेटवर्क मिल जाएगा, तो आप इजीली फील्ड में उतर सकते हैं. सही. बट माई कंसर्न इज कि भाई 4 साल में क्या करते हो? 4 years इज लिटरली अ लॉट. 3-4 years फॉर अ सिंगल डिग्री इज वेरी लॉट. True. और पाकिस्तान में और ना ही हमें वो चीज़ मिल पाती है जिसके लिए हम पे कर रहे हैं, ना हमें वो स्किल्स मिल रही हैं, ना वहाँ पे हमारे पास वो चीज़ें मौजूद हैं जिससे हमें सिखाई जा सकती है. जिस तरह आज ट्रेंड है BSAI का, जिसको जो सुन रहा है वो जा रहा है. या किसी को आजकल कुछ नहीं काफ़ी पता. लोग यूनिवर्सिटीज़ में कोर्स उठा रहे हैं BSAI. किसी को कुछ नहीं पता उसके बारे में. लिटरली इस्लामाबाद में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके लिए हम पूरा लाइक पूरा इस्लामाबाद प्रेज है, और वो एक डिवाइसेस जो कि AI के एक मॉडल बनाने के लिए काम आती हैं, वो पूरे इस्लामाबाद में सिर्फ 11 हैं जो कि लीज पे ली हुई हैं. नो वन ओन्स इट इन इस्लामाबाद. सही. सो ऐसी बहुत चीज़ें हैं जिसकी भी ज़रूरत है. सो वहाँ लेकिन ये है कि यू जस्ट लर्न द बेसिक. जब बेसिक सीख लेंगे तो आप इजीली फील्ड को आपको समझ आ जाएगी कम से कम. ठीक है. अब फील्ड में आके आप काम शुरू कर सकते हैं. लेकिन क्या होता है कि आजकल के टाइम पे एक एज अ फ्रीलांसर जब कोई स्किल सीख भी ले तो उसको बूम करना लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल हो गया. आजकल कह रहे हैं जी. आप क्या करें, आप कोई भी सॉफ्ट स्किल सीखें सबसे पहले, वेदर इट्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इट्स मार्केटिंग, इट्स वेदर यू इंटरेस्ट, आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उस पर रिसर्च करें. आप सारी स्किल्स एक बार खोल लें, सबको ज़रा टेस्ट आउट करें कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है. आपको जिस चीज़ का इंटरेस्ट है उस फील्ड में आप चले जाएं. स्टार्ट लुकिंग फॉर स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट्स, स्टार्ट लुकिंग फॉर फ्रीलांसर प्रोजेक्ट्स ऑन लिंक्डइन, ऑन फाइवर, ऑन अपवर्क. ठीक है, फाइवर अपवर्क उस तरह नहीं रहा जिस तरह एक ज़माने में था. ऑन लिंक्डइन आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रीलांसर मार्केट प्लेस. ट्रू. वन ऑफ द बिगेस्ट. हमारे आज भी ऑलमोस्ट 15% क्लाइंट्स लिंक्डइन से ही हैं अराउंड. तो आपको खुद रिसर्च करनी है हमेशा कि किस चीज़ का टाइम है और कौन सी चीज़ मेरे लिए ठीक है. आपने हमेशा ट्रेंड को नहीं फॉलो करना. ट्रेंड हमेशा उस चीज़ का होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए आती है. ये सब सुन रहे हैं, डोंट फॉलो द ट्रेंड. वो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड शॉर्ट टर्म के लिए आता है, लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेंड नहीं आता. आप मुझे बताएं, मशीन लर्निंग AI से चेंज हो सकता है? I don't know. Not possible. Yeah. Can a ChatGPT write same code for me for my health app same as a human? No, not possible.
Not possible. Okay. AI is just to help humans. It's not for university assignments. Yeah, majority of students use AI for their university assignments, जो कि नहीं करना चाहिए, नहीं। that is wrong. इसके Completely. अलावा अरे what do you think कि अभी जो situation of Pakistan है, how do you think it can move forward, especially if we look at other countries, they're more developed, उनके पास ज़्यादा client है, उनके पास ज़्यादा project है, they have more funding. So how can a Pakistani startup stand out? हम रोज रोज सुनते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल यूथ है बिल्कुल हमारे पास है, बट मेजॉरिटी ऑफ आवर यूथ इज लिटरली नॉन सीरियस. कभी काम उनको वो सीरियस नहीं हो पाती काम में. आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, 4-5 लोग दोस्तों का ग्रुप है, एक आइडिया आया, स्टार्टअप आया, NIC गए, पिच किया, फंडिंग मिल गई. फंडिंग मिलने के बाद आगे क्या करना है? तो मुझे लगता है वो खुद इतनी रिसर्च नहीं कर पाते कि जिसकी वजह से ऑलमोस्ट एवरी स्टार्टअप फेल्स इन पाकिस्तान. ऑलमोस्ट. I think motivation भी factor होता है. मोटिवेशन भी है, लाइक वो यानी ये फील्ड ही ऐसी है कि लिटरली आप पहला स्टेप लेंगे, आप कहेंगे यार ये मैं कहाँ गया हूँ, गलती कर दी मैंने, आगे चलो वापस चलें. ये हमारी फील्ड है ही ऐसी. स्टार्टअप्स में होता ही ऐसा है. आपको हर दिन बड़ा डिफिकल्ट लगता है. Yeah. आपको लगता है व्हाट टू डू नेक्स्ट. रोजाना एक नया पंगा खुला हुआ होता है आपके सामने. तो इट इज डिफिकल्ट. नथिंग इज इजी. इट्स नॉट इजी टू मेक मनी. Oh, true. इट्स डिफिकल्ट. इट्स नॉट इजी. बट अभी क्या है, जो मेरी एक सजेशन है सिर्फ, और मैं बताता हूँ हर जगह पे, कि हर स्टूडेंट एक स्किल सीख ले, एक कोई ना कोई एक सॉफ्ट स्किल सीख ले, कोई भी ऐसी स्किल जो कि अब इस टाइम पे इन डिमांड हो, मार्केट प्लेस में इन डिमांड हो, फ्रीलांसर में इन डिमांड हो, उसका क्लाइंट बैठा हुआ हो. डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, वर्डप्रेस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग एंड मल्टीपल मोर थिंग्स, AI, मल्टीपल मोर थिंग्स. अभी आप खुद रिसर्च करें कि हमारे पास इस टाइम पे मार्केट में किस चीज़ का क्लाइंट्स बैठे हुए हैं हमारे पास. आपने जो कंट्रीज टारगेट करनी है, आप उन कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करें. ऑनलाइन आप हर जगह वहाँ पे देखें कि किस चीज़ की डिमांड है. जब डिमांड होती है तो आपने यहाँ से सप्लाई करना है ऑब्वियसली. ठीक है. तो क्या होगा, अभी US में फॉर एग्जांपल आपको नज़र आ रहा है कि भाई AI मैनेजमेंट के लोग चाहिए हमें, या आपको ग्राफिक डिज़ाइनर्स चाहिए, आपको सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएटर्स चाहिए. तो आपको जिस चीज़ का ट्रेंड नज़र आ रहा है, जो चीज़ आपको नज़र आ रही है कि भाई इन डिमांड है और इसने रहना है, मतलब AI इज़ नॉट गोना टेक ओवर अ हिट. आपने उस चीज़ को, उस पर रिसर्च करना शुरू कर देनी है, और रिसर्च करने के बाद उसको एक्सपीरियंस करना शुरू कर देना खुद ही. सही. डूइंग मल्टीपल स्टफ्स. ठीक हो गया. आप खुद अपनी पोस्ट बनाएं, आप खुद मल्टीपल वेबसाइट्स बनाएं और खुद सीखें हैंड्स ऑन. पर अरीब, इस पे फॉर एग्जांपल आई वुड से कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स कि वो मल्टीपल टास्क्स करें. आई गेस इसी वजह से वी हैव लेस एंटरप्रेन्योर्स बिकॉज इट्स a lot of work. Did you do a lot of work so you can give some motivation to the audience as well? Motivation in terms of like, did you do lots of work? आपको consecutively multiple hats पहननी पड़ी, doing everything, then rather than just getting a job? और एक ऐसी क्या चीज़ थी why you didn't want a job? Why I didn't want a job? Yeah, why? इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है. Okay. You just didn't want to do I it. never made my CV. Okay. Till date. अब तक नहीं. नहीं. Okay. Yeah, because you wanted to be your own boss? Once when I was in, I think, 7th grade, तो हमारी एक टीचर थी, वो हमें एक बार बताया करती थी कि, मुझे क्या बताया करती, खास तौर पर मुझे, कि अरे पढ़ लिया करो, कहीं अच्छी कुर्सी पे तो बैठ जाओ, अच्छे नौकर बोकर बन जाना एक बार, कुछ तो कर लेना. तो मैं आज तक हर बंदे को बताता हूँ कि मेरी एक टीचर थी, वो मुझे कहती थी कि अच्छा नौकर बन जाना एक बार. और वो बात हमेशा मेरे दिल पे ही लगती थी, यार ये नौकर मैं क्यों बनूं मैं नौकर. और एक दूसरी बात,
हर बंदा सीईओ पहले दिन से नहीं बन सकता। आपने हमेशा उस पाथवे, अगर आप करना भी नहीं चाह रहे ना जॉब को, तो आपने कम से कम उस पाथवे को एक बार देखना ज़रूर है, उस पर रिसर्च ज़रूर करनी है, ताकि आपके पास जो टीम है आप उसको समझ सकें। अब कहा जाता है ना कि आपके ऑफिस में बैठा हुआ आप डेवलपर का आप तभी समझ सकते हैं जब आपने खुद किसी ऑफिस में डेवलपर की जॉब की हो। तो आपने क्या करना है, आपने टोटली समझना है हर बंदे को, टोटली। और आपने अब हमेशा अपने हर एम्प्लॉय को, अपने मेंबर को अपने करीब करना है हमेशा। ठीक हो गया। सो बेसिकली क्या करना है कि सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा अपनी फील्ड में रह के काम करें, अपनी इंटरेस्ट में रह के काम करें। नेवर चेंज योर इंटरेस्ट विद टाइम। आपको नज़र आ रहा है कि भाई ये चीज़ है और ये मेरे लिए बेस्ट है, कभी भी अपनी ये चीज़ नहीं देखना कि भाई वो बंदा है तो वो इससे बहुत पैसा कमा रहा है तो चलो लेट्स डू दिस। इट्स नॉट गोना वर्क। डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, या। आप हमेशा वही चीज़ करें जो आपके लिए है, बस। पर वो सर्टन चीज़ लोगों को कैसे पता चलेगी ये चीज़ क्या है? क्या मल्टीपल चीज़ें ट्राई करें? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ऐसा दुनिया में कोई इंसान ही नहीं है विदाउट स्किल। द मेन प्रॉब्लम इज़, और जो कामयाबी की जो जिसको पहली सीढ़ी कहते हैं ना, वो यही है कि आपने खुद पे रिसर्च करना शुरू करनी है कि मैं हूँ किस लिए, मैं आया किस लिए हूँ, मेरा काम क्या है, मेरा गोल क्या है, करना क्या है मैंने। और इसका कोई तरीक़ेकार नहीं है, कोई दुनिया का मेंटोर नहीं जो आपको ये सिखा सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल। चाहे आप दुनिया का जो कोर्स भी ले लें, जो चीज़ भी बाय कर लें, आप नहीं कर सकते। आपने खुद अपने ऊपर रिसर्च करनी है प्रॉपर। ठीक है। लाइक माइंडेड लोगों के साथ बैठें, रिसर्च करें, इंटरनेट देखें कि आपको इंटरेस्ट, आपको कौन सी चीज़ लिखने में मज़ा आ रहा है, कौन सी चीज़ करने, कोई बंदा कर रहा है तो आपको देख के अच्छा लग रहा है कि यार हाँ मतलब मैं देखूँ, मुझे कल मुझे अगर समझ आई कि भाई ITs बस ये टाइम था ख़त्म, तो मैं तो हूँ इस काम के लिए, चाहे कल मुझे 10 गुना कम भी कोई दे रहा हो। आज मेरे पास मेरे इंटरेस्ट से कोई स्टार्टअप आता है, जबकि मेरे पास ऑलरेडी स्टार्टअप्स की बुक मेरे, अब क्या है कि बेसिकली अरीब इनोवेशंस इज ऑलरेडी लाइक वी आर बुक्ड फॉर सितंबर। अब सितंबर तक कंप्लीटली अब बुक्ड हैं, हमारी मीटिंग्स कंप्लीटली बुक्ड हैं। तो क्या होता है जब हमारे नए बैचेस आते हैं तो उसमें से जब बुकिंग्स होती हैं तो वो काफ़ी लंबा चली जाती हैं हमारी, लेकिन हमारी अब एक दिन में 10, 11, 12 नॉर्मली हमारी मीटिंग्स हो रही होती हैं। और उनमें से लाइक लिटरली 10%, 15% क्लाइंट हम कर लेते हैं कैच। ठीक हो गया। तो ये एक दिन 2 दिन की अगर आप बात सोच के आए हैं ना, तो फिर मुश्किल है। आपने हमेशा हर चीज़ को प्रॉपर टाइम देना है। टाइम के बगैर ज़िंदगी में कोई काम नहीं होगा। टाइम देना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ को, चाहे दुनिया में जो काम भी कर रहे हैं। और ये कि आपने हमेशा काम के अंदर ऐसा घुस जाना है कि आप कहें कि भाई बस द वर्ल्ड एंड मी इन दिस वर्क, बस कुछ भी नहीं। और आपने इस मतलब जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि आपने रिसर्च करना है प्रॉपर, अपनी स्किल ढूंढनी है, खुद अपने माइंड को अपने पढ़ना है खुद ही, और फिर उस स्किल पे अपने काम शुरू करना है। तो अरीब, सो दिस इज everything you have done. So is Areeb Khan ever going to retire? Yeah, what's your future plan? So basically मुझे ज़िंदगी में मुझे ऑलमोस्ट, वैसे तो मैं बचपन से ही मतलब फील्ड में ही हूँ, काम भी कर रहा हूँ प्रोफेशनली इन IT, एज आई टोल्ड सिंस 2018, 2019 I never planned for future. No. Never. Allah plans for me. I don't know what's gonna happen tomorrow. हाँ बेशक मेरे पास अगला 3 महीने प्लान है, मेरे मैनेजर के पास 3 महीने अगले प्लान है कि हमने क्या करना है। लिटरली हम कभी भी उससे पूरा नहीं उतरे, कभी भी नहीं होता ऐसा। हाँ शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं मेरे पास, क्योंकि एंटरप्रेन्योर को वो ज़रूरी होती है, चाहे वो मटीरियलिस्टिक हो चाहे वो कोई और चीज़ हो। अब मैंने अगर काम करना है तो मुझे कुछ वक्त बाद अपने आप को कुछ ना कुछ ट्रीट देना पड़ता है मुझे। एक और चीज़, कोई भी यंगस्टर कोई भी काम कर रहा है और उसको जब लगता है कि भाई मैंने पहला सीढ़ी पार कर ली है, तो अपने आप को कोई ना कोई रिवॉर्ड दो। जैसा कि इफ़ यू आर 17 और आपके माइंड में है कि यार मैंने ये चीज़ लेनी है, फॉर एग्जाम्पल एक वॉच,
आपने ये चीज़ लेनी है। आपको जब एक गोल नज़र आएगा ना, गोल एक दूर आपको एक चीज़ नज़र आएगी, तो तब आप जल्दी भागने की कोशिश करते हैं उसके पीछे। Yeah. जब आपको सामने कुछ होता नहीं है, आपके सामने ना नज़र कोई आपको नहीं आता, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा मैं आज के दिन भी ऐसा ही करता हूँ, और मैं हमेशा अपने हर टीम मेंबर को ये कहता हूँ, अपने घर में भी ये कहता हूँ कि अपना गोल रखो एक प्रॉपर, कि नेक्स्ट गोल इज दिस, नेक्स्ट इज दिस, नेक्स्ट इज दिस। So you don't future plan, ठीक है. नो फ्यूचर प्लान। So पर you have expectation, you have certain goals कि मैंने अब ये करना है. Yep, हाँ. Goals are there. पर Yep. ये नहीं कि बहुत आगे का फ्यूचर प्लान, but goals are there. Yep. क्या मैंने आज इस ईयर पे ये हिट करना है, टारगेट्स आते हैं. यस यस। So you make targets. Yep. और would you say आपके जो टारगेट्स हैं काफ़ी हाई होते हैं अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, ताकि आप ज़्यादा रीच अप करो? हमेशा क्या करता हूँ कि मैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकली बताऊँ, तो अगर मैं रिवेन्यूज की बात करूँ, तो मैं क्या करता हूँ अपने, जैसा कि अब मेरे सेल्स पर्सन हैं, तो सेल्स पर्सन को टारगेट देने का आसान तरीका कि आपने पिछले महीने से ज़्यादा इस साल की सेल करनी है, आई विल गिव यू एन आईफोन। तो बस दुनिया बन गई इनकी। ठीक है. So Arib, the next question I would ask is, do you see कि पाकिस्तानी सोसाइटी अब अपलिफ्ट होगी थ्रू दिस टेक और वगैरह? अब क्या न्यू लोग आ रहे हैं और क्या वो अच्छा काम कर रहे हैं, दैट वी कैन एक्सपेक्ट कि हमारी फ्यूचर ग्रोथ हो? बिल्कुल हो रही है। पाकिस्तान को हमने बोल के ख़राब कर दिए। पाकिस्तान इज द वर्ल्ड्स बेस्ट फ्रीलांसर्स, वी हैव द वर्ल्ड्स बेस्ट आईटी प्रोफेशनल्स, लिटरली द वर्ल्ड्स बेस्ट। True. हमारी तरह के मेहनती लोग हमारी फील्ड में मैंने आज तक नहीं देखे। हमारे में क्या होता है कि हम खुद ही सोशल मीडिया पे आके, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया होता, वो पाकिस्तान के बारे में 2-3-4 बातें बोल देते हैं। और मोस्टली स्कूल्स कॉलेजेस में हम यही सीखते हैं कि अब पाकिस्तान को हमने सिर्फ बोल के ख़राब किया हुआ है। पाकिस्तान हैज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट आईटी कंपनीज, वी प्रोवाइड द वर्ल्ड्स बेस्ट सर्विसेज, True. लिटरली वर्ल्ड्स बेस्ट। सही है. तो This is great. पाकिस्तान हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इंशाल्लाह। Yeah. एंड यूथ में क्या है कि अब यूथ को कम से कम समझ आ गई है, हमारी फील्ड की समझ आ गई है, और ख़ास तौर पे अब जितना इस चीज़ को बूम मिल गया है, हमारे आप कह सकते हैं पेरेंट्स को भी आ गई है। इस तरह एक ज़माने में नहीं होता था, सही. अब सबसे ज़्यादा होता है। True. एक ज़माने में डॉक्टर बनने का होता था, आज आईटी प्रोफेशनल बनने का होता है। सही. ऐसा ही है। Yeah. So Arib, my last question from you would be, what advice would you give to a younger Arib who's starting out in your It's field? very personal, but let me tell you, हमेशा यानी ज़िंदगी को आपने ना एक ऐसा रूप ले लेना है। आपने हमेशा ज़िंदगी को, आपने हमेशा जो अपनी बैड वाइब है ना, उसको हमेशा साइड पे कर देना है। चाहिए. फॉर एन एंटरप्रेन्योर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ज़िंदगी में जब हमारे सामने हमारे घर में भी कोई चीज़ हो रही होती है ना, तो वी कैंट वर्क। मैं नहीं कर सकता काम, यानी मुझे जब तक ऐसा इन्वायरमेंट ना मिल पाए ना, तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है. मैं नहीं कर सकता। अब मैं क्या करता हूँ, जिस तरह मैंने पहले ही बताया, अब मैं इस तरह टारगेट्स करता हूँ, इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें मेरी जो मैं करता हूँ अपने आप के साथ। ठीक है। तो मोस्टली मेरी जो वो चीज़ें भी हैं जो मैं हॉबी करता हूँ, वो भी मेरी फील्ड रिलेटेड हैं। आई हैव अ रिसर्च रूम इन माई हाउस। सही है। तो मैं इस तरह की मोस्टली मेरी जो हॉबीज़ भी हैं वो फील्ड की हैं, तो मैं अंदर ही रहता हूँ मोस्टली। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अब कि फॉर यंगर अरीब, इट्स जस्ट के look forward, work hard, and don't look back. Thank you. Yeah. So that is actually a good advice. Thank you so much, Arib, for coming in my podcast. ठीक है. So I'm your host Mariam Arif. You can see me on Instagram @ITS MARYAMARIF Mariam Arif, and you can follow him as well, Arib Innovations and Arib Khan. Thank you so much. Thank you so much.